Yes, so I think you all can see now here, this is chapter 6, we are reading the human body. Okay. Yeah. Yes. Who is that speaking, beta? Please switch off your microphone. I am not going to tell again and again, I will just remove you from the class. Yes. So we were reading about, beta switch off your microphone. Whose microphone is on? Kindly switch it off. गुड मॉर्निंग मैम। बेटा आई डोंट वांट एनी गुड मॉर्निंग नाउ इन बिटवीन द क्लास। आप लोग को जो भी गुड मॉर्निंग क्लास के बीच में बोलना है आप टाइप करके बोल दीजिए। ओके, बीच में आप लोग बिल्कुल नहीं बोलेंगे। सुनीता कुमारी प्लीज स्टॉप प्रेजेंटिंग। यस, so we were reading about the human body. So I told you that in this chapter we are going to read about the different parts of the body. Okay, and I told we will read about our body, how it is made up of cells, and we will read about the, beta you chapter number 6 in your book, page number 49. Okay, so I told you that our body, it is a wonderful machine. Okay, our body, you can see it is like a wonderful machine, just like a car. Just like a car, it has many parts inside and outside. जैसे कार के बहुत सारे parts होते हैं अंदर और बाहर. It has many parts like engine, doors, wheels, tires. Okay, and all these parts they work together and then the car जो है वो smoothly road पे चलती है. अगर कोई भी part खराब हो जाता है तो part में problem, कार में थोड़ी problem आ जाती है. तो वैसे ही हमारी ह्यूमन बॉडी भी एक मशीन की तरह ही है, जस्ट लाइक अ वंडरफुल. तो ऐसे ही हमारे बॉडी में भी जो है अंदर देर आर मैनी पार्ट्स इनसाइड एंड आउटसाइड. हियर यू कैन सी सम पार्ट्स विच आर शोन ऑन द स्क्रीन. ओके, so just like the car it has many parts, our body also has many parts and each part they do their own work. हर part अपना अपना काम करता है. Like here you can see there are many parts, like you can see the brain, liver, kidneys, lungs, heart, stomach. So there are many parts and all these parts they work together. और इन parts को हम क्या बोलते हैं? इन साइंस लैंग्वेज ये बॉडी के जो parts हैं इनको हम बोलते हैं organs. Okay, these are called organs. All the parts of the body in science language we call them organs. And these all the human organs, whatever action they perform, some special actions, and these actions are called functions. Each organ perform a special function and that is how the human body works, just like a wonderful machine. It is an amazing machine and these organs they keep on working for all the 24 hours. सारे 24 घंटे जब आप सो रहे होते हो तब भी ये जो हमारे बॉडी के पार्ट्स हैं, जैसे कि हमारा ब्रेन है, हमारा हार्ट है, लीवर है, लंग्स है, ये काम करते ही रहते हैं. दे कीप ऑन वर्किंग कंटिन्यूसली थ्रू आउट द लाइफ. जब तक आप जिंदा हो दिस पार्ट्स कीप ऑन वर्किंग. ऑल दिस एंड ये सारे पार्ट्स जो हैं अकेले काम करेंगे तो हमारा बॉडी जो है इट कैन नॉट रन स्मूथली. सो ऑल दिस पार्ट्स वर्क इन कोऑर्डिनेशन, मिल के काम करते हैं कोऑर्डिनेशन में एक दूसरे के साथ. And that is how the body then it works. And this all the organs when they work together they keep us alive. They work together, they function together. And it is said, ऐसा बोला जाता है कि भगवान ने जो ये हमारा शरीर बनाया है, जो इसकी मशीन है, ये इतनी कॉम्प्लेक्स है कि इसको जो है इससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड या जटिल ऐसी और कोई भी मशीन नहीं है. इट इज़ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड, द मोस्ट कॉम्प्लेक्स machine. Like this you can see, like here you can see that human body it is like a machine. Okay, हमें पिक्चर नहीं दिख रही. पिक्चर नहीं दिख रही है? स्टार्टिंग से नहीं दिख रही थी? स्टार्टिंग में दिखी थी? मैम पूरा नहीं दिख रही मैम. ओके ओके, आई एम स्टार्टिंग अगेन. ओके, मैं फिर से स्टार्ट करती हूँ. यू कैन सी देन. ओके, yes, now mute your mics. Okay, you can see now. Yeah, now you can see, I think all can see now.
सो आवर बॉडी इट इज़ लाइक दिस वंडरफुल मशीन की तरह है हमारी बॉडी, और ये सारे जो पार्ट्स हैं, ऑर्गन्स हैं, वो मिल के काम करते हैं टू कीप अस अलाइव. ओके, या सो आई टोल्ड नाउ वी विल गो टू द पार्ट्स ऑफ द बॉडी. मेनली जो हमारी बॉडी है, ओके, द ह्यूमन बॉडी मेनली इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स हैं हमारी बॉडी के. एक तो हमारा सर होता है, फिर बीच का हिस्सा है, और फिर हमारे हैंड्स एंड लेग्स. सो द अपर पार्ट जो है सर, दैट इज़ द हेड, एंड देन द पार्ट विच इज़ बिलो द हेड, जो सर के नीचे है, मतलब कि हमारी चेस्ट एंड आवर स्टमक. सो दैट पार्ट इज़ कॉल्ड द ट्रंक. एंड देन द हैंड्स एंड लेग्स जो है, इनको हम बोलते हैं लिम्स. सो दिस आवर बॉडी इट इज़ मेनली डिवाइडेड इंटू दिस 3 पार्ट्स, हेड, ट्रंक एंड limbs. Now let me tell you about each part. head में क्या क्या होता है. okay, so here you can see that our body it has 3 parts. arrow marks पे आपको दिख रहे हैं that the body, okay, you can see here head and the trunk, the middle part, and limbs are the hands and legs. okay, they are called the limbs of the human body. Now come to the head. okay, so on the head what all you can see here eyes, nose, ears, mouth, you can see hairs. ये तो आपको बाहर दिख रहे हैं, और अंदर भी कुछ है हमारे हेड के. so the most important part that is the brain, that is inside the head. so here you can see that, yeah, so here you can see this is the parts of the body. okay, it's a head, parts of the head. Eyes, we see with our eyes, the eyes help us to see, and the ears they help us to hear, and the mouth helps us to taste, and the nose helps us to smell. so these are the organs, important organs which the head contains. okay, but the most important organ of all, okay, the most important organ of all that is inside the head, that is our brain. this is the most important part. and why it is called the most important part? because it is the brain that controls the whole body. पूरी body को जो है brain control करता है, और कोई भी command जो है that is given by the brain. जब तक brain command नहीं देगा तब तक आप अपना एक उंगली भी नहीं हिला सकते हो. so when the brain gives a command, only then it is that our body works. so the brain controls the whole body, and also it gives commands to the whole body. order देता है पूरे body को कि उसको क्या काम करना है. so here this is the brain, you can see. okay, the most important part of the head. then we will go to the next part, that is the trunk. तो ट्रंक जो है इट इज़ द मिडल पार्ट ऑफ द बॉडी, और इसके अंदर 2 पार्ट्स होते हैं. एज यू कैन सी, पहला जो है चेस्ट, दैट इज़ मतलब छाती, एंड देन द स्टमक, और इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड बेली भी बोलते हैं उसको. सो द ट्रंक इट इंक्लूड्स द चेस्ट एंड द बेली. तो इनके अंदर भी कुछ पार्ट्स है, ये तो बाहर हैं, और इनके अंदर क्या है, चेस्ट के अंदर जो है, ओके, या चेस्ट के अंदर जो है देर आर 2 पार्ट्स, दैट इज़ द लंग्स. यू कैन सी हियर लंग्स, जिनसे कि हम सांस लेते हैं. ओके, सो दीज आर कॉल्ड द लंग्स, जिनको हम सांस लेते हैं, या हिंदी में भी कॉल दम फेफड़े बोलते हैं उनको. ओके, सो द चेस्ट जो है इनकी रक्षा करता है, ये अंदर प्रोटेक्ट करते हैं इसको, लंग्स को. एंड देन द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट अगेन इज़ द हार्ट. दिल जो है हमारा बॉडी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है. सो दिस हार्ट एंड लंग्स दे आर, दोनों जो है वो चेस्ट में, हमारी बॉडी में जो चेस्ट है, छाती है, वहाँ पे है ये उनमें अंदर. सो दिस चेस्ट, ओके, इट प्रोटेक्ट्स दिस लंग्स एंड हार्ट. एंड देन वी ऑल्सो हैव द लीवर. ओके, जो लीवर है दैट इज़ ऑल्सो इन द ट्रंक ऑफ द बॉडी, दैट इज़ इन द मिडल पार्ट ऑफ द बॉडी. तो the chest it protects, sorry, the trunk, okay, it protects these 3 important organs, the liver, the heart and lungs. All these 3, lungs, heart and liver, they are protected by the trunk. Yes, so now we will go to the next part of the body, that is the limbs. That means the hands and
legs. Okay, so as you can see here, our body, it has three parts: head, trunk and limbs. And what are the limbs? Arms and legs. As you can see, my arms and legs are my limbs. तो arms and legs जो होते हैं वो हमारे limbs बोलते हैं उनको. Okay, so this is the arm. As you can see, इसको arm बोलते हैं. Okay, जो hand है shoulder से लेकर यहाँ तक. Okay, this is called the arm. Yeah, so you can see here, this is called the arm. तो arm में जो है क्या क्या होता है? Please stop your, please mute your mics. Who is that? Yeah, mute your mic. Yeah, so here you can see this is the arm. तो arm जो है वो हमारा हाथ होता है. ओके, the arms ऊपर से लेकर नीचे तक. तो arm से जो हम, बेटा प्लीज स्विच ऑफ योर माइक्रोफोन. ओके, whose mic is on? Switch it off immediately. सो आर्म से जो है हम क्या क्या करते हैं, हमारे आर्म्स से क्या क्या काम आते हैं. सो आर्म्स जो है हमें हेल्प करती है लिखने में. इट हेल्प्स अस टू राइट, इट हेल्प्स अस टू कैच, चीज़ों को पकड़ने में. इट हेल्प्स अस टू पिक अप, उठाने में, चीज़ों को उठाने में हेल्प करती है. इट ऑल्सो हेल्प्स अस टू प्ले, हमारे हाथों से ही हम खाना भी खाते हैं. सो इट हेल्प्स अस टू ईट ऑल्सो. ओके, इट हेल्प्स अस टू ड्रॉ. बहुत सारे काम करते हैं हम अपने हैंड्स से. तो हमारे जो हैंड्स है, ये आर्म्स है, इसके पार्ट्स होते हैं, डिफरेंट पार्ट्स हैं. जैसे कि हमारी जो है ये कोहनी है, इसको हम बोलते हैं एल्बो. ओके, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, एल्बो मतलब कोहनी. फिर रिस्ट मतलब कि कलाई, जहाँ पे घड़ी पहनते हैं या फिर आपकी मम्मी चूड़ी पहनती है, घड़ी पहनते हैं, एग्जैक्टली उस जगह को कलाई बोलते हैं. इन इंग्लिश वी कॉल इट द रिस्ट. और फिर क्या है, फिंगर्स होते हैं. और फिंगर्स में क्या है, नेल्स भी होते हैं. आगे वी हैव द फिंगर nails, hands, fingers and nails. So these are all the parts of the hands. Okay, or the arms. Arm के different parts हैं. Okay, hands, fingers, nails, elbow, wrist. So these are all the parts of the arm. And then we come to the next part, that is the legs. Okay, we have a pair of legs and a pair of arms. सो लेग्स से हम क्या क्या करते हैं. ओके, वी वॉक विथ आवर लेग्स, वी रन विथ आवर लेग्स, किक, वी कैन किक विथ आवर लेग्स, वी कैन डांस विथ आवर लेग्स, वी कैन स्किप विथ आवर लेग्स, वी कैन जंप विथ आवर लेग्स. सो बहुत सारे काम हम अपने लेग्स से करते हैं. एंड आवर लेग ऑल्सो हैज़ डिफरेंट पार्ट्स. हमारे लेग के भी पार्ट्स होते हैं. लाइक हियर यू कैन सी, दिस इज द एंकल. दिस पार्ट इज कॉल्ड, द फर्स्ट पिक्चर यू कैन सी, दिस पार्ट इज कॉल्ड द एंकल, या फिर टकना जिसको बोलते हैं हिंदी में. दिस इज कॉल्ड एंकल इन इंग्लिश. एंड हियर यू कैन सी, दिस जो है गोडे जो होते हैं हमारे हिंदी में भी कॉल गोडे, इन इंग्लिश वी कॉल इट नीज. दीज आर कॉल्ड द नीज. एंड देन दीज आर कॉल्ड द थाइज. ओके, तो हमारे जो लेग्स है, ओके, इसके मेन पार्ट्स होते हैं थाइज एंड देन द एंकल, नीज एंड देन फुट. ओके, मतलब कि जहाँ पे आप अपने चप्पल या शूज़ पहनते हो उस पार्ट को फुट बोला जाता है. एक है तो फुट बोलते हैं और दोनों को मिला के फीट बोलते हैं. ओके, और जो ये उंगलियाँ होती हैं पैरों की, इनको फिंगर्स नहीं बोलते, वी कॉल दम टोज बोलते हैं इनको. सो द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द लेग्स क्या क्या बताए मैंने आपको, टोज एंड देन फुट या फिर फीट एंड देन द थाइज and then ankle and knees. So these are the different parts of the legs. Okay, and then how our human body is made up of. Okay, so now come to the part, our human body, it is made up of so many tiny parts. बहुत सारे छोटे छोटे parts होते हैं. Like you can see here, this is the cell. Okay, cells. और बहुत सारे cells जो एक जैसे cells होते हैं. सो सेल्स क्या होते हैं, एक्चुअली सेल्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. हमारे बॉडी का जो सबसे छोटा सा छोटा, जिनको कि हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते, अपनी नंगी आँखों से, ओनली माइक्रोस्कोप के नीचे हमें दिखाई देते हैं. ये सेल्स बहुत ही छोटे छोटे होते हैं ये. सो ये जो सेल्स हैं, बहुत सारे सेल्स जो हैं एक जैसे सेल्स मिला के बनते हैं टिश्यूज़. जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा है सेल,
और इसके बाद जो है टिश्यूज है, ये ग्रुप ऑफ सेल्स जो है, एक जैसे ग्रुप ऑफ सेल्स वो मिलके टिश्यू बनाते हैं। आपने बताया था इसके बारे में। ये मैंने आपको सबसे पहला चैप्टर पढ़ाया था जब आपके पास बुक नहीं थी, लेकिन ओके तो अब आपके पास बुक में है। सो ग्रुप ऑफ सेल्स जो है वो टिश्यू बनते हैं, और जो टिश्यूज होते हैं, ग्रुप ऑफ टिश्यूज, वो मिलके एक ऑर्गन बनाते हैं। ओके और फिर ये ऑर्गन्स जो है बनाते हैं, सिस्टम बनाते हैं पूरा। तो आई विल एक्सप्लेन यू अबाउट ऑल दिस अगेन। ये आपको दिख रहा है। ओके सो हियर सेल्स जो है क्या फॉर्म करते हैं, टिश्यूज बनाते हैं सेल्स। ओके एंड टिश्यूज क्या बनाते हैं, फिर ऑर्गन्स बनाते हैं। टिश्यूज ऑर्गन्स मतलब जो हमारे बॉडी के मैंने आपको दिखाए थे अभी ऑर्गन्स, जैसे कि हार्ट है, लीवर है, लंग्स हैं, ये सारे हमारे ऑर्गन्स हैं। तो ये सेल्स से बने हुए सेल्स जो हैं वो टिश्यूज़ बनाते हैं, और टिश्यूज़ फिर उन ऑर्गन्स को बनाते हैं, और ऑर्गन्स जो हैं मिलके ऑर्गन सिस्टम्स बनाते हैं, क्योंकि एक ऑर्गन अकेला काम नहीं कर सकता, वो मिलके काम करते हैं। ओके सो दैट इज़ द ऑर्गन्स जो है मिलके वो ऑर्गन सिस्टम्स बनाते हैं, और फिर बनता है ये हमारी बॉडी बनती है, ह्यूमन बॉडी जो है, ये ऑर्गेनिजम्स जो है ये दैट इज़ मेड। ओके इस तरह से हमारी बॉडी बनती है। ओके बहुत ही टाइनी होते हैं ये, ऐसा बोला जाता है कि हमारी उंगली जो है अगर हम इसको छूते हैं एक पेपर पे या टेबल पे तो लाखों सेल्स हमारे झड़ जाते हैं, ऐसा बोला जाता है। इतने सेल्स हैं हमारे बॉडी में, लाखों करोड़ों मिलियंस ऑफ सेल्स हैं हमारी बॉडी में। ओके एंड ऑल द सेम टाइप ऑफ सेल्स जो है वो जॉइन करके टिश्यूज़ बनाते हैं, और ग्रुप ऑफ टिश्यूज़ जो हैं वो ऑर्गन बनाते हैं, और फिर जो एक आधे ऑर्गन्स, कुछ ऑर्गन्स जो हैं वो मिल के काम करते हैं, तब वो एक सिस्टम बन जाता है। ओके एंड देन ये डिफरेंट जो सिस्टम्स हैं ये वर्क टुगेदर, और फिर वो हमें हेल्प करते हैं। हम जो भी काम करते हैं, जैसे कि हम सांस लेते हैं, हम कोई भी काम करते हैं, लिखने का, पढ़ने का, या प्ले कर रहे हैं, खेलने का काम कर रहे हैं, या खाना खाने का काम कर रहे हैं, तो ये सारे जो है ऑर्गन्स जो हैं डिफरेंट सिस्टम्स जो है मिलके फिर काम करते हैं। सो ऑल दिस वर्क टुगेदर। तो ये भी आपको दिख रहा है। ओके सेल्स जो है वो टिश्यूज़ बनते हैं, और टिश्यू से मिलके जैसे यहाँ पर एक ऑर्गन बन गया है, दिस इज़ आवर लंग्स बन गए हैं। ओके और फिर ये लंग्स जो है हमारा सिस्टम क्या बन गया, ये सांस लेने का सिस्टम बन गया, इनसे रेस्पिरेटरी सिस्टम है ये सांस लेने का। तो आपको दिख रहे हैं कि अकेले लंग्स जो है वो हमें सांस लेने में हेल्प नहीं कर सकते, इसमें जो है हमारा नोज़ भी हेल्प करता है, माउथ भी हेल्प करता है, और हमारे जो ये लंग्स भी हेल्प करते हैं। और ये जो आपको बीच में दिख रहा है ये हमारा विंड पाइप बोलते हैं इसको, इसमें से हवा जो है हमारी नाक से हम लेते हैं, और ये नाक से जो है हवा इस विंड पाइप के थ्रू लंग्स में जाती है। सो दिस इज़ हाउ द ऑर्गन द सिस्टम्स वर्क, और फिर जाके एक पूरी ह्यूमन बीइंग जो है वो बनता है। ओके सो इन द नेक्स्ट क्लास आई विल टेल यू अबाउट द डिफरेंट सिस्टम्स के बारे में बताऊंगी कि कौन कौन से सिस्टम्स हैं। ज़रा आपको बता देते थोड़ा सा। तो ये जो है जैसे हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, तो इसके बारे में मैं आपको अगली क्लास में अच्छे से समझाऊंगी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम मतलब हमारा सांस लेने का जो है वो कैसे लेते हैं हम सांस, और कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जो हेल्प करते हैं हमें सांस लेने में। फिर आई विल टेल यू अबाउट द डाइजेस्टिव सिस्टम, ये एक और सिस्टम है डाइजेस्टिव सिस्टम, मतलब कि खाना पचाने वाला। ओके डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे हम जो खाना खाते हैं वो कैसे पचाते हैं। ओके सो दिस इज़ द डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में भी मैं आपको नेक्स्ट क्लास में आई विल एक्सप्लेन। यस स्विच ऑफ योर माइक्रोफोन। ओके देन दिस इज आवर स्केलेटल सिस्टम, मतलब कि हमारे बॉडी का ढांचा जो है ये। ओके स्केलेटल सिस्टम बोलते हैं, ये कैसे खड़ा है, हम खड़े कैसे होते हैं, तो ये जो हमारे बोन्स की वजह से हम खड़े हो पाते हैं, हमारी बॉडी को खड़ा रखता है। सो इसके बारे में भी आई विल टेल यू, दैट इज़ कॉल्ड द स्केलेटल सिस्टम, जिसके बारे में आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट क्लास। देन वी हैव द मस्कुलर सिस्टम, मतलब कि मसल्स। ओके तो ये जो इसके बारे में भी आई विल टेल यू अबाउट इन द नेक्स्ट क्लास, मस्कुलर सिस्टम क्या होता है। देन दिस इज़ द सर्कुलेटरी सिस्टम, मतलब कि ब्लड जो है हमारे पूरे बॉडी में कैसे पहुंचता है, हमारे ब्रेन से ऊपर, ब्रेन से लेके हमारे पैरों के उंगलियां टोस तक ब्लड कैसे पहुंचता है, इसके बारे में आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट क्लास। एंड दिस इज़ द नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम मतलब कि हमारा जो ब्रेन है, ओके वो कैसे मैसेजेस पहुंचाता है, कैसे कंट्रोल करता है पूरे बॉडी को,
स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स, इन सब के बारे में आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट क्लास. एंड देन दिस इज द एक्सक्रीटरी सिस्टम. एक्सक्रीटरी सिस्टम मतलब कि जो भी हमारे बॉडी में हम खाना खाते हैं. बेटा स्विच ऑफ, ये कौन है बेटा? ऑफ, स्विच ऑफ. अब यस, स्विच ऑफ योर माइक्रोफोन बेटा. तो ये एक्सक्रीटरी सिस्टम है. सो एक्सक्रीटरी सिस्टम के मतलब कि वो होता है जिसमें कि हम जो भी खाना खाते हैं तो हमारे बॉडी में जो वेस्ट है वो बाहर कैसे निकलता है. हमारे बॉडी को जो चाहिए है वो तो प्रोटीन्स, विटामिन जो भी है वो तो बॉडी हमारी रख लेती है. फिर कुछ फूड होता है, ऐसा होता है जो वेस्ट होता है, जो बॉडी को ज़रूरत नहीं होती है, तो उनको बाहर कैसे निकालता है बॉडी, दैट इज़ कॉल्ड द एक्सक्रीटरी सिस्टम. ओके. एंड देन द रिप्रोडक्टिव सिस्टम मतलब कि बच्चे कैसे पैदा होते हैं. तो इन सब के बारे में आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट क्लास. ओके. सो नाउ वी विल गो बैक टू द क्लास. इफ़ यू हैव एनी डाउट्स नाउ यू कैन आस्क मी.